Welcome to the second session of Day 1 of Knowledge series. The topic of this session is Role of Intellectual Property in the Pharma Industry. Our speaker for this session is Mrs. Pooja Kumar, who is the founder and director of Innov Intellects LLP, established in 2017. Mrs. Kumar is a registered patent agent and startup facilitator of Government of India. She a 13 years experience She holds a 13 years experience in intellectual property rights field. She has won gold medal in master's degree in microbial and food technology from Punjabi University Patiala. Besides that, she is certified with patent management course and WIPO IPR course. She has achieved expertise in biotechnology, food technology, microbiology, and innovation and entrepreneurship and IPR. She is working as an IP consultant with different universities and colleges and has established IPR cells in prominent universities and had delivered more than 50 awareness programs related to intellectual property rights for students, faculty, entrepreneurs, startups in different universities, colleges, and institutes. She has filed more than 150 patent applications, nearly 50 industrial design applications, and more than 60 copyright applications. The new venture started by Mrs. Kumar is Smart IP Academy, which trains students for patent analyst courses and also helps in upgrading skills of students in patent work. We welcome you, ma'am. Before we begin with the webinar, I would like to read out some guidelines which needs to be followed by the participants throughout the session. Firstly, it is suggested that during the program, all the participants should turn off their audio and video for an uninterrupted session. Secondly, all the participants are requested to hold their queries and the same shall be addressed in the question and answer session scheduled at the end of the webinar. Now, I would like to hand over the session to Mrs. Pooja Kumar for her presentation. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you. So, as the topic of the lecture is today is the importance of IPR in pharmaceutical industry. Okay. So we have covered different aspects of pharmaceutical industries, like what is compulsory license, why compulsory license is important for pharma, and what are is generic drugs are patentable or not. Okay, and some case studies about infringement and some case studies related to oppositions which came in the pharma sector. Okay, so starting with what is intellectual property right. My voice is audible? Divyash? Yes, ma'am. Okay. So now You what are is audible. intellectual? Yeah. Now starting with what is intellectual property We rights? can't As see you your all. PPT. Yes. Can't see your PPT. We can't see your PPT. Have you shared them? Yeah, I have shared my PPT. Just wait. I can't see it. Okay, just wait. I will share it again. Okay. See, I have shared it. Can you see it? Yeah. See, is it visible? Yes, it's visible now. Can you try the slideshow? Yeah. Yes. No. See. I have. Sir, is it visible now? Yes, yes, you can carry on. Okay. Yes, now it's visible. Okay. Well, so where I am, what is intellectual property right? See, intellectual property is the creation of human mind. Anything, any idea came in your mind and you want to file a patent for that. Okay, it can be any composition, it can be any formula, it can be any process, or it can be any device. So there are various aspects where we tell our inventor that how you can protect this particular thing, this particular invention into which form. So these are the rights which are given to the inventor for the creation of the mind. The rights are given to different aspects. Like for example, if I'm talking about patent, the rights are given to the inventor for patent for 20 years.
and after 20 years the invention come in a public domain. So we have a different types of intellectual property right, like patent, trademark, designs, copyright, geography indication, and trade secret. Patent is, it's a legal document that is given by the government. It's a legal certificate that is given by the government for your two type of work. One is process patent, another is product patent. Okay, in process patent it can be any formulation, it can be any composition. In product patent it can be a device, it can be any apparatus. You can go for product patent. In trademark, trademark is given to the any type of name, any type of logo, okay, that you have designed, that you file for any of for your startup that you have started. So you can go for trademark registration. Trademark registration का जो टाइम होता है वो भी आपका 10 years होता है. After 10 years आपको अपने जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करना पड़ता है. नेक्स्ट आपका था डिजाइन, जिसमें इंडस्ट्रियल डिजाइन आपका जो मेन आपका जो डिजाइन का ऑफिस है वो हमारा कैलकाटा में है. अगर आपने कोई भी मेडिकल डिवाइस ऐसी बनाई है जिसका जो डिजाइन है आपको लगता है कि काफी नॉवल है, उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन की फॉर्म में हम उस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट व्यूज आपको हमें सेंड करने होते हैं, जो कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और साइड भी हो सकते हैं. कैड कैम पे पिक्चर्स भी आप भेज सकते हैं, या ओरिजिनल प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी आप फाइल कर सकते हैं. डिजाइन के जो राइट्स होते हैं वो भी आपके 10 इयर्स के लिए होते हैं. 10 इयर्स के बाद आपको इनको भी रिन्यू करना होता है. नेक्स्ट आपका था कॉपीराइट. कॉपीराइट जो मिलता है आपको आर्टिस्टिक, लिटरेरी, सिनेमेटोग्राफिक वर्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के लिए आपको पेटेंट ऑफिस कॉपीराइट देता है. ठीक है, जिसमें लिटरेरी कैटेगरी में अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ अगर आपने हार्डवेयर को इम्बेड किया है, then you can go for patent. But अगर आपको लगता है कि you have only made software algorithm, then you can file a copyright for that particular kind of work. So copyright में different categories है, जिसमें हम अपने client को advise करते हैं किस कैटेगरी में आपका copyright फाइल होगा. As soon as copyright का सर्टिफिकेट, इन सारे प्रोसेस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो copyright का सर्टिफिकेट इतना फास्ट होता है कि आपको अगर सब कुछ आपका काम ओके है तो विद इन 2 और 3 मंथ्स में आपका कॉपीराइट आपको सर्टिफिकेट अवार्ड होता है कॉपीराइट ऑफिस की साइड से. नेक्स्ट आपका है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज रिलेटेड टू जीआई, दैट इज कॉल्ड जीआई टैग्स, जो कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पेशल प्रोडक्ट्स जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स उनको उगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर ऑरेंजेस, कांचीपुरम साड़ी, ओके, एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक, जैसे आगरे का पेठा. तो हर एक प्रोडक्ट को अगर आपको लगता है कि ये जो स्पेशलिटी है जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं, ठीक है, तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसको भी रजिस्टर करें. पता चला अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले और उड़ीसा के रसगुल्ले में एक फाइट हो रही थी कि इसका ओरिजिनेट, इसका जीआई हमें मिलना चाहिए. उड़ीसा ने बोला मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फाइट हुई. फिर उसमें एविडेंस शो किए कि आपका जो बनाने का तरीका है, उसकी जो रेसिपीज है वो हमारी बिल्कुल डिफरेंट है. तो जो दोनों को जीआई मिला डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए और पर्टिकुलर स्टेट के लिए. नेक्स्ट आपका आता है ट्रेड सीक्रेट. ट्रेड सीक्रेट में आपकी ऐसी इन्वेंशन जो आप पेटेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कोई रेसिपीज हो सकती हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि ये चीजें आपकी कहीं डिस्क्लोज ना हो. ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई पेटेंट ऑफिस नहीं होता है. इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज. आप एक एग्रीमेंट करें 2 पार्टीज के बीच में और आप अपनी सीक्रेट को अपना सेव कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट कवर्स पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट, जीआई एंड ट्रेड सीक्रेट. Next, how these different types of intellectual property comes into the picture of one single product. I have taken example of Adiatech. Adiatech, you know, it's a company, it's a pharmaceutical company, and they have patented a smart pill bottle. Why they have patented the smart pill bottle? Because they incorporate the sensor and the cellular technology into the plastic walls of bottle. So what is the importance of that? The sensor can accurately measure a single pill of solid medication. So if a patient misses a dose, the bottle remind them by a message, okay, with an on-bottle light that have a chime, and finally an automated text message or a phone call which can send to the patient, caregiver or a family members that the patient has forget to take the medicine. Now it's a time to they are sending a messages to the family members. They are reminding you, okay. So this smart technology is filed a patent, okay. And second, the name of the company, Adiatech, if they have a logo, they can file under trademark. The unique design of the bottle comes under the industrial design registration. And the manual, when we buy any product, जब भी हम कोई मार्केट्स के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो we get the leaflet, ठीक है, जो हमें लीफलेट हमें मिलता है, तो हम उसको जो मैनुअल हमें इंस्ट्रक्शन कोड हमें मिल रहा है, उस
इस लीफलेट को हम किस कैटेगरी में प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उस लीफलेट को हम कॉपीराइट की कैटेगरी में फाइल कर सकते हैं। तो आपने देखा एक प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो मैं एक मैंने मेडिकल डिवाइस का एग्जांपल लिया है। अगर मैं एक बात करती हूँ जनरल एक वॉशिंग मशीन की भी, तो एक वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें भी कितनी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पेटेंट। पेटेंट मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव राइट है जो कि इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, ओनली फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अगर आपने सोचा है कि कोई प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, बाय डूइंग रिसर्च यू कैन फाइल अ पेटेंट फॉर दैट। तो इंडिया में जो पेटेंट एप्लीकेबल होते हैं, जो लेजिस्लेशन जो पेटेंट के लिए इनैक्ट हुआ है, दैट इज इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। नेक्स्ट, बेनिफिट क्या है ऑफ ओइंग अ पेटेंट? यू कैन ओन द इन्वेंशन फॉर अ गिवन टाइम, लाइक you can enjoy your rights for 20 years, you can use it, build a business, you can start your own business if you have a patent, you can license it, okay, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि उसका एक स्टार्टअप शुरू करें, आप क्या करें, आपने जब पेटेंट फाइल किया है तो आप क्या करेंगे, आप किसी कंपनी को उसको लाइसेंस करेंगे, ठीक है, आप किसी कंपनी को बेचेंगे, तो आपका क्या फायदा उस पेटेंट के? आपका फायदा है कि आपको उसकी रॉयल्टीज मिल रही है, आपको पैसा जनरेट हो रहा है। तो ये बेनिफिट है पेटेंट्स का। नेक्स्ट, यू कैन कंप्लीटली सेल द पेटेंट टू अदर कंपनी। जब हम पेटेंट सेल करते हैं तो हमारे दो लाइसेंस होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव लाइसेंस, एक होता है नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। एक्सक्लूसिव में हम सारे अपने राइट्स दे रहे हैं कंपनी को कि हम आपको पूरा पेटेंट बेच रहे हैं, ओके, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ पार्ट ही उसको सेल करूंगा, तो वी कैन हैव अ नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस विद द अदर पार्टी। एक क्राइटेरिया ऑफ पेटेंट क्या है? आपके पास इन्वेंशन है, ठीक है, आपके पास कोई ड्रग है, आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जो आपने न्यू फाइंड आउट किया है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पेटेंट ऑफिस का कि आपकी जो इन्वेंशन है, एनी इन्वेंशन, वेदर इट इज रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री, वेदर इट इज रिलेटेड टू बायोटेक, एनी इन्वेंशन, फर्स्ट द क्राइटेरिया ऑफ द इन्वेंशन इज नॉवेल्टी। आपकी जो इन्वेंशन है वो नॉवल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी इन्वेंशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। देखिए, हम लोग इन्वेंटर्स या हम लोग साइंटिस्ट क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही अपनी इन्वेंशन को पेटेंट प्रायर मतलब फाइल करने से पहले ही उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस, इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार, या फिर पब्लिकेशन पेपर्स में आपने पब्लिश कर दिया। तो पेटेंट ऑफिस का क्राइटेरिया है कि अगर आपने अपने काम को पहले ही पब्लिश कर दिया तो पेटेंट ऑफिस आपको नहीं अलाउ करेगा कि आप उसके ऊपर पेटेंट फाइल करें, ठीक है, वो एंटिसिपेट कर देगा। इसीलिए बेटर है कि पहले आपको अपनी इन्वेंशन को कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि नॉवेल्टी होनी चाहिए, आपको पहले पेटेंट फाइल करना है, उसके बाद ही आप अपने पेटेंट को पेपर या पब्लिकेशन में कहीं पे भी डिस्क्लोज करें। नेक्स्ट, इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप का मतलब है कि आपकी जो इन्वेंशन है उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा ना लगे कि आपने पेटेंट फाइल किया और कोई आपसे पूछे कि आपने किस चीज के ऊपर पेटेंट फाइल किया और आप वो बोले अरे ये तो बड़ा ऑब्वियस है इन्वेंशन है, इसमें क्या पेटेंट फाइल किया है। तो आपकी इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस होनी चाहिए, ओके, द पर्सन ऑलरेडी स्किल्ड इन द आर्ट। Third criteria है industrial application. Invention can be made or means an invention should have commercial value in the market. जो भी आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं उसकी commercial viability होनी चाहिए, commercial value होनी चाहिए, तभी उस पेटेंट का फायदा है। तो ये जो 3 criteria है, they are very important when you have a patent and you file the patent. After filing, the patent office will scrutinize that the patent you have filed in the patent office are meet all these criteria or not. Next, I have taken example of one pharmaceutical composition that the title is extended release pharmaceutical composition. See, जब भी आप पेटेंट फाइल करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपकी जो इन्वेंशन का जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत वेग नहीं होना चाहिए। उसमें आप 15 वर्ड से ज्यादा अपने वर्ड्स यूज ना करें और टाइटल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए इन्वेंशन से रिलेटेड। मतलब जैसे एक्सटेंडेड रिलीज फार्मास्यूटिकल कॉम्पोजिशन, टाइटल पढ़ने से मुझे लग रहा है कि किसी बंदे ने, इन्वेंटर ने कॉम्पोजिशन फाइल करी है, ठीक है। अगर इसका प्रोसेस भी नॉवल है एंड प्रोसेस देयर ऑफ, उसके आगे आप प्रोसेस भी, अगर आपको लगता है कि मेरा बनाने का प्रोसेस भी नया है तो आप उसके आगे प्रोसेस को भी डाल सकते हैं। तो टाइटल जब भी आप अपने ड्राफ्टिंग में टाइटल लिखेंगे तो आपका टाइटल 15 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टू द रिलेटेड होना चाहिए आपकी इन्वेंशन से। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट। द प्रेजेंट इन्वेंशन प्रोवाइड्स एन एक्सटेंडेड रिलीज फार्मास्यूटिकल कॉम्पोजिशन कंप्राइजिंग मिलीसेपरिन और फार्मास्यूटिकल एक्सेप्टेबल सॉल्ट देयरऑफ कंप्राइजिंग। जब भी हम कोई एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आप हमेशा ध्यान रखें 150 वर्ड से ज्यादा आपका एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट जो आपका समरी होता है इन्वेंशन का, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो टेक्निकल प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आप उसमें निकाल रहे हैं, आपको उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी क्या है वो बतानी है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट में बताना है, ओके।
एब्स्ट्रैक्ट को आप जैसे इसमें कॉम्पोजिशन नोवेल्टी है, पढ़ने से लग रहा है कि कॉम्पोजिशन क्लेम किया है, तो जब भी हम कॉम्पोजिशन क्लेम करते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं लीगली, जैसे कंप्राइजिंग, कंसिस्टिंग ऑफ। तो कंप्राइजिंग मतलब इमिलिसिप्रिन कंपाउंड मिलके उसके साथ स्टेबलाइजर्स, एडिटिव के साथ मिलके कॉम्पोजिशन हमने बनाई है। फर्दर द प्रेजेंट इन्वेंशन प्रोवाइड्स द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग। अब कॉम्पोजिशन के साथ साथ इसमें मैं प्रोसेस भी क्लेम कर रही हूँ, ठीक है। हम उसमें बता रहे हैं कि जो प्रोसेस है इस कॉम्पोजिशन को बनाने का वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। सो दिस इज द राइटिंग, दिस इज द हाउ वी कैन राइट द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बाद वी क्लेम। अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है तो वी राइट वी क्लेम, और अगर कोई इंडिविजुअली फाइल कर रहा है तो वी राइट आई क्लेम। An extended release pharmaceutical composition of milisprin hydrochloride prepared by molding method comprises में आप उसकी वैल्यूज, उसकी क्वांटिटी बता देंगे, ठीक है। डिफरेंट क्वांटिटी, अगर आपको लगता है कि इसका मेथड भी नॉवल है तो एक जो इंडिपेंडेंट क्लेम बनेगा, ए प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग द फार्मास्यूटिकल कॉम्पोजिशन कंप्राइजिंग द स्टेप्स ऑफ। तो हमारे इस पेटेंट में दो आपके इंडिपेंडेंट पेटेंट क्लेम होंगे, one is composition and other is process, and this is the patent which was developed by KB Institute Pharmaceutical Education and Research. Next, what types of patent you see in pharma sector? आप फार्मा डिपार्टमेंट से हैं तो आपके पास क्वेरीज होती है कि किस टाइप के पेटेंट हम फाइल कर सकते हैं। सी मॉलिक्यूल, अगर आपको लगता है कोई मॉलिक्यूल आपने डेवलप किया है, ठीक है, कोई कॉम्पोजिशंस आपने डेवलप की है, कोई फॉर्मुलेशंस है, उन सबको आप पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। प्रोसेस को फाइल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, प्यूरिफिकेशन मेथड हो गया, डायग्नोस्टिक प्रोसेस हो गया। डायग्नोस्टिक किट को आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं, जो मेथड है, ठीक है। मेथड को मेडिकल डिवाइसेस में पेटेंट ऑफिस नहीं अलाउ करता है कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को आप फाइल करें, ओके, वो आई कम इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक किट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, दीज टाइप ऑफ इन्वेंशन यू कैन फाइल इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। नेक्स्ट, पेटेंटेबल इन्वेंशंस क्रिएटेड ड्यूरिंग R&D प्रोसेस। किस किस टाइप की पेटेंट एंड इन्वेंशंस क्रिएट होती है जब आप रिसर्च करते हैं, ड्रग से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, कोई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हो सकते हैं, जीन थेरेपीज हो सकती हैं, कोई स्क्रीनिंग एसेज हो सकते हैं। तो these type of certain categories where you can find the scope of patentable inventions. Now, what are the importance of pharma patents in pharma industry? Patents grant exclusive right to non-obvious and non-novel inventions, effective way to protect the invention and generate return on the investment. Third, the patent protection essentially to keep check on competitors, help in recouping the investment incurred during the R&D. These are the importance of patent in pharma industry. Now, why? What is a good reason? The patent prevent other from commercially utilizing the invention. Like it prevent other that you cannot use our invention without permission, without taking a permission from us. If you do so, we can infringe you. Okay. Next, for the research-based industry, periods of market exclusivity are the crucial for the R&D expenditure. Patent encourage financial risk and long-term research. Okay. Next, protection against potential infringers. Intellectual property right allow pharmaceutical companies to take strict action against counterfeit drugs. Protection of consumer rights, that is why you file a patent. IP rights help the consumer in making the right choice while selecting the medical product. So these are the benefits of filing a patent. These are the benefits why patents are important in pharma industry. Next, there are certain exclusion from the patent office that don't allow you to file a patent in certain type of things. Like for example, according to Section 3 and Section 4 of Indian Patent Act 1970, there are certain non-patentable inventions. For example, any invention which are contrary to public order, or any invention which is related to discovery of scientific principles. It's not an invention, it's a discovery. So these discovery, like they are not patentable, they are not filed in the, if you file the patent in the patent office will object during the FER response. Next, next is obtained by mere admixtures. The composition that's only the resultant of adding something. They are not producing any new properties, so they are not allowed. Method of agriculture and horticulture, they are not allowed in the patent office. Atomic energy inventions are not allowed in the patent office. They came under Section 3, 4. Living things, non-living things occurring in nature, they are exclusions. They are not allowed to file a patent on these kind of things. Mathematical and business method. Next, very important when we are talking about aspects related to pharma industries like 3I and 3D. They are very important part of the patent system.
3I of Indian Patent Act 1970 as amended in 2005 does not allow patent to be granted to the process of medical, surgical, curative, prophylactic or treatment of human being, render them disease free. Patent office say if you file a patent for removing plaque from your teeth, so they are not patentable because it's come under 3I. So they suggest you, if you file a patent in the field of medical, you can file a patent on devices rather than on a method. So diagnostic kit, like if you have made any diagnostic kit for corona, yes, these are patentable. That is patentable. Okay, but if you say you have develop a method to treat the corona patient, so this is not allowed under section 3I. Next, very important aspect is section 3D. Most of the invention when we file in the patent office come under the section 3D category. Like they see the mere discovery of new form of known substances which does not result in enhancement of known efficacy of that substances, or mere discovery of any new property or new use of known substances is not patentable. The patent office says अगर कोई एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सपोज मेथी दाना इज ऑलरेडी नोन फॉर डायबिटीज, ठीक है, हमें पहले से पता है कि मेथी दाना डायबिटिक पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्योर यूज होता है, ठीक है, अगर मेथी दाने का पानी पीते हैं या फिर नीम, ठीक है, नीम डायबिटीज के लिए नोन है। तो आपने क्या किया, आपने 2-3 चीजों को मिक्स किया, ठीक है, 2-3 प्लांट को ऐसे मिक्स किया, एक कॉम्पोजिशन बनाई जिसमें वो सारे प्लांट ऑलरेडी नोन है पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है, जो आयुर्वेदा में या हिस्टोरिक पीरियड में नोन है। आपने क्या किया, सबको मिक्स किया और एक पेटेंट फाइल किया। आपने बोला मैंने एक नई कॉम्पोजिशन बनाई है। वो नई कैसे हुई? क्योंकि आपको भी पता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर प्लांट एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी डायबिटीज के लिए नोन है। तो पेटेंट ऑफिस का कहना है कि अगर आपने कोई कॉम्पोजिशन, कोई प्रोडक्ट, कोई इन्वेंशन आपने बनाई है, उसको पेटेंट फाइल करते हैं, तो आपको उसकी एफिकेसी प्रूव करनी होगी। आपको दिखाना होगा वो बेटर कैसे है, इम्प्रूव्ड कैसे है। एक एग्जांपल लिया था सेक्शन 3D में, नोवार्टिस का पेटेंट एप्लीकेशन था जो पेटेंट ऑफिस ने थेरेपेटिक एफिशिएंसी की वजह से डिस्कार्ड कर दिया था, नॉन पेटेंट कर दिया था। नोवार्टिस ट्राइड टू पेटेंट ग्लीवैक, एक बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, ओके, इन इंडिया इन 1998। पेटेंट ऑफिस रिजेक्टेड द क्लेम बेस्ड ऑन सेक्शन 3D। पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया कि आपके जो क्लेम्स है वो सेक्शन 3D में फॉल कर रहे हैं। नोवार्टिस फिर भी सुप्रीम कोर्ट गया और उसने बोला कि नहीं, they failed to provide the sufficient evidence to distinguish from the imatinib, the later being patented in 1993. The Supreme Court said the drug showed no new innovation or invention thereof did not satisfy the criteria under section 3D of Indian Patent Act. Okay, so it means अगर आपको लगता है कि आपने कोई मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए नोन है, ऐसी इन्वेंशन पेटेंट ऑफिस में फाइल करी है, तो पेटेंट ऑफिस आपसे थेरेपेटिक एफिशिएंसी के रिजल्ट मांगेगा। ओके, तो थेरेपेटिक एफिशिएंसी का मतलब आपको आपके क्लिनिकल ट्रायल्स या कुछ एफिशिएंसी, कुछ आपको पेटेंट ऑफिस को सबमिट करना होगा साइंटिफिक ट्रायल, साइंटिफिक रिजल्ट्स के फॉर्म में, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी जो नोन इन्वेंशन है उससे बेटर कैसे है, बेटर थेरेपेटिक एफिकेसी कैसी प्रूव कर रही है आप। ओके, नेक्स्ट, इनोवेशन डोमेन्स ऑफ फार्मा। फार्मा में किस टाइप के ड्रग कॉम्बिनेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, okay, plant-based inventions, antibacterial drugs, anti-cancer drugs, these type of patent are filed in pharma domain. आयुर्वेदिक के फॉर्म में टीकेडीएल में जनरली गाइडलाइंस के थ्रू चले, ज्यादातर पेटेंट हमारे टीकेडीएल में फॉल कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेटेंट ऑफिस का आयुर्वेदा को लेके बहुत मेजर कंसर्न हुआ कि उन्होंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, जो चीजें ऑलरेडी नोन है उन्हीं को लेके मिक्स करके फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो पेटेंट ऑफिस उनको टीकेडीएल में चला जाता है और सेक्शन 3 में फिर से दे देता है कि दे आर नॉट पेटेंटेबल बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द ट्रेडिशनल नॉलेज। तो फिर ये निकल के आया कि अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाते हैं, कंपैरेटिव रिजल्ट्स दिखाते हैं कि अगर मैं 2-3 कॉम्पोजिशन को मिक्स भी कर रहा हूँ तो उससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी मोर बेटर हो रही है, तब पेटेंट ऑफिस ने देखा कि अगर आप ये आपका आयुर्वेदिक रिलेटेड पेटेंट्स को फाइल करते हैं तो वी कैन फाइल, बट उसके लिए आपको उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड करने होंगे जो कि बेटर एफिशिएंसी को शो करें। टॉप की प्लेयर्स इन फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा में डिफरेंट की प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट पेटेंट्स फाइल करते हैं। कैडिला है, CSIR है, डॉक्टर रेड्डी है, वो कार्ड, ठीक है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी एमिटी यूनिवर्सिटी के नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड है, सिप्ला, सन फार्मा। सो दीज आर द टॉप की प्लेयर्स हु फाइल पेटेंट इन फार्मा इंडस्ट्री। नेक्स्ट, हु कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास इन्वेंशन है, आपने काम किया है, ड्रग है, कोई मॉलिक्यूल है, कौन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? सी, एज अ पर्सन, एज एन इन्वेंटर, यू कैन आल्सो फाइल योर पेटेंट एप्लीकेशन। एनी पर्सन
क्लेमिंग द असाइनी, एप्लीकेंट, कोई कंपनी, कोई यूनिवर्सिटी भी पेटेंट फाइल कर सकती है, ठीक है। थर्ड, बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आपका कोई भी आपका अटॉर्नी जो है, रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट्स हैं, वो आपका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है आपके बिहाफ पर। प्रोसेस क्या रहता है पेटेंट को ऑब्टेन करने का? सी, कोई भी पेटेंट, कोई भी आइडिया आपके पास आया तो आपके पास दो रूट होते हैं, वन इज कॉल्ड प्रोविजनल एप्लीकेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड कंप्लीट एप्लीकेशन। आपने आपके पास एक मॉलिक्यूल आया, आपके पास एक रिसर्च आपने किया, आपने फाइंड आउट किया कि इस मॉलिक्यूल का, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो यूज है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर कैंसर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग आपने बनाई है, तो बट उसके रिजल्ट्स अभी रेडी नहीं है, ठीक है, ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, यू नीड सम टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो आप उस केस में प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रायोरिटी डेट मिल जाती है, देन यू गेट 1 year टाइम टू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। इसमें आपको एक एक्सटेंशन और मिल जाता है कि अगर आप पोस्ट डेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने पेटेंट फाइल किया प्रोविजनल एप्लीकेशन, 1 साल के अंदर आपको लगता है कि नहीं, मैं पेटेंट अबंडन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ, बट मुझे उससे एक्सटेंशन चाहिए, तो पेटेंट ऑफिस से आप पोस्ट डेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है। पोस्ट डेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो प्रायोरिटी डेट है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि अब उसके हिसाब से प्रायोरिटी नहीं होगी जो पहले प्रोविजनल फाइल किया था। नेक्स्ट, पब्लिकेशन। पेटेंट जैसे ही फाइल किया, ओके, आपका जो पेटेंट है वो पेटेंट ऑफिस में पब्लिश होता है, इंडियन पेटेंट ऑफिस की जनरल की साइट पे 18 महीने लगते हैं एक पेटेंट को पब्लिश होने में। बट अगर आप अर्ली पब्लिकेशन के लिए जाते हैं, फॉर्म 9 के थ्रू जाते हैं, तो आपका वही पेटेंट 1 महीने के अंदर पब्लिश हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास स्टार्टअप सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप एमएसएमई से रजिस्टर्ड है, तो आप अपना स्मॉल एंटिटी का बेनिफिट, स्टार्टअप का बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास जीपीआईआईटी का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म 9 के थ्रू जा सकते हैं और एक्सपेडाइट प्रोसेस के लिए भी आगे जा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन में वुमेन एप्लीकेंट भी है, एक वुमेन एप्लीकेंट है, तो भी आप एक्सपेडाइट प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। तो एक्सपेडाइट प्रोसेस जाने से फायदा क्या होगा कि जो पेटेंट आपका 3 या 4 साल में ग्रांट हो रहा था, वही पेटेंट अब आपका विद इन 1 year भी ग्रांट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, पब्लिकेशन हो जाता है। अर्ली फॉर्म 9 आपने फाइल किया, 1 महीने पेटेंट पब्लिश हुआ, उसके बाद आपके पास आता है प्री ग्रांट ऑपोजिशन और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। पब्लिकेशन के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होती है, जिसमें आप किसी को सू करना चाहते हो, मतलब आप किसी को अपोज करना चाहते हो किसी के पेटेंट को, ठीक है, तो आप ग्रांट से पहले प्री ग्रांट ऑपोजिशन पे फाइल कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राउंड्स के बेसिस पे, ठीक है। आप डिफरेंट ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी को पेटेंट ऑफिस में अपोज कर सकते हो कि ये जो पेटेंट फाइल हुआ है इसको मैं अपोज करना चाहता हूँ, इस बेसिस पे इस फ्रॉडली केस ने पेटेंट जो लिया है वो फ्रॉडली लिया है, ठीक है, ये इन्वेंशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी। तो पेटेंट ऑफिस में ऐसा नहीं होता कि आपने अपोज किया और आपने कहा और बात मान ली पेटेंट ऑफिस ने। पेटेंट ऑफिस का एक क्राइटेरिया होता है, एक ऑपोजिशन बोर्ड होता है, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करते हैं जो आपने एप्लीकेशन अपोज के लिए लगाई है। दोनों पार्टीज को हियरिंग का मौका मिलता है, एविडेंस के बेसिस पे फिर फाइनली डिसाइड होता है कि पेटेंट ग्रांट होगा या रिजेक्ट होगा। ओके, सो ये प्री ग्रांट ऑपोजिशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन के बाद आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें फॉर्म 18 आपको फाइल करना होता है। यहाँ पे मैं बताऊंगी, अगर आप स्टार्टअप है, एमएसएमई वाले रजिस्टर्ड है, स्मॉल एंटिटी में है, या आप अपने एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट प्रोसेस में लेके जाना चाहते हैं जिसमें वुमेन एप्लीकेंट भी है, तो आप एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं, जिसमें 18A नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, रूल्स जब अमेंड हुए थे, जिसमें फॉर्म 18A के थ्रू आप एक्सपेडाइट अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो पेटेंट ऑफिस से आपको एक एफआईआर रिसीव होती है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने कोई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फाइल किया है तो पेटेंट ऑफिस उसको सेक्शन 3I में डाल देगा। तो अब आपको 3I से निकलना है तो आपको बताना पड़ेगा, आपके पास एक चांस मिलता है एफआईआर के टाइम पे कि आप अपने क्लेम्स को अमेंड कर सकते हैं। आप पूरी ड्राफ्ट में कुछ भी नहीं चेंज कर सकते सिवाय क्लेम्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने डायग्नोस्टिक डिवाइस को भी क्लेम किया है और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट भी उसमें आ रहा है जिसमें सेक्शन 3I लग के आ गया है, तो आपको हम एज अटॉर्नी की हेल्प लेते हैं। तो आप अटॉर्नी आपको सजेस्ट करता है कि आप मेथड को हटा दीजिए, ठीक है, डिवाइस या डायग्नोस्टिक किट पे आप लेके जा सकते हैं अपने पेटेंट को आगे। तो इसका 6 महीने का टाइम होता है जिसको आपको रिप्लाई करना होता है एफआईआर का। और एफआईआर जैसे ही आप रिप्लाई करते हैं, अगर पेटेंट ऑफिस के जो कंट्रोलर है, अगर वो सेटिस्फाई है आपके रिजल्ट से, तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है। बट अगर उनको लगता है कि अभी भी कुछ पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं, इन्वेंटिव स्टेप पे अभी इशू है, तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग के लिए भी प्रेजेंट करते हैं। मतलब दोनों तरीके से हियरिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी और फिजिकल हियरिंग भी। जो भी मोड आप चूज करना चाहते हो वो उसकी आपको मेल रिसीव होती है
और हियरिंग में आप इंटरेक्ट करते हैं कंट्रोलर के साथ, आप उन्हें जस्टिफाई करते हैं अपने आंसर्स को, अपने जस्टिफाई देते हैं जो भी क्वेरीज उन्होंने पूछी है। अगर कंट्रोलर जस्टिफाई हो जाता है तो आपका जो पेटेंट है वो ग्रांट हो जाता है। जैसे ही पेटेंट ग्रांट होता है, द डे यू रिसीव, द डे द ग्रांट पेटेंट ऑफिस ग्रांट द पेटेंट, उसी दिन आपको एक सर्टिफिकेट पेटेंट ऑफिस मेल कर देता है, ठीक है, जिसके ऊपर पेटेंट का नाम, एप्लीकेशन नंबर, सारी डिटेल्स होती है। फिर आपके पास एक और ऑप्शन बचता है पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन का। अगर आपको लगता है कि किसी को आपको सू करना था, मतलब अभी भी आपको लगता है कि भाई ग्रांट हो गया पेटेंट, अब भी मेरे पास चांस है कि नहीं, तो आपके पास 1 साल का चांस और बनता है, आप पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के थ्रू किसी को भी अपोज कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जो कि पेटेंट से रिलेटेड है, जिसमें 3 से 4 साल लगते थे एक पेटेंट को ग्रांट होने में, बट क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सपेडाइट प्रोसेस शुरू किए हैं, अभी उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस को लेके भी एक्सपेडाइट में डाला है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको भी एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन का प्रोसेस का मौका दिया जाए। तो अभी रूल्स अमेंड हुए नहीं है, अभी रूल्स आए हैं, लेट्स सी कि अगर हो जाते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर द educational institutions also, that they will also go for expedite examination in future. Next, what are the documents required? Documents क्या क्या चाहिए? सी फॉर्म 1 चाहिए, फॉर्म 2 चाहिए, फॉर्म 3 और फॉर्म 26। फॉर्म 26 की रिक्वायरमेंट तब होती है अगर कोई अटॉर्नी से आप पेटेंट फाइल करा रहे हैं, ठीक है। अगर अटॉर्नी की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो आपको फॉर्म 26 की रिक्वायरमेंट नहीं है, और फॉर्म 1 और 2 और 3 लेकर आप पेटेंट ऑफिस में पेटेंट फाइल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द स्टैट्यूटरी फीस, जो कि अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो 1600 रुपए है, और अगर वही पेटेंट लार्ज एंटिटी के थ्रू फाइल होता है तो उसकी 8000 गवर्नमेंट फीस है। अगर वही पेटेंट एक स्मॉल एंटिटी की तरफ से फाइल होता है तो 4000 फीस है। ओके, डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू आप पेटेंट ऑफिस में फीस फाइल करते हैं और एप्लीकेशन नंबर आपको एलोकेट होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। इंडिया में जो आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन है। अगर आप इंडिया से बाहर कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, बेसिक एप्लीकेशन करने के बाद, इंडिया में फाइल करने के बाद आप पीसीटी रूट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए जा सकते हैं, जिसमें पेरेंट एप्लीकेशन आपने एक फाइल करी थी और उसमें आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है, तो आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हैं। सेम आपका नेक्स्ट आता है डिविजनल एप्लीकेशन, जो कि सेम प्रायोरिटी पेरेंट एप्लीकेशन की इसमें भी चलती है, और इसमें होता है कि आपने 2 से ज्यादा एप्लीकेशन एक पेटेंट एप्लीकेशन में फाइल किया तो पेटेंट ऑफिस आपको कहता है कि आप इसको डिविजनल एप्लीकेशन में फाइल करें। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट्स अ रफ डॉक्यूमेंट, आइडिया है सिर्फ आपका, ठीक है। नो नीड टू फाइल एनी क्लेम। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रायोरिटी डेट मिल जाती है और आपको पास टाइम मिल जाता है अपनी इन्वेंशन को कंप्लीट करने का 12 महीने का। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स आपको देनी होती है, ठीक है। टाइटल देंगे, प्रायर आर्ट होगी, आपके ऑब्जेक्ट होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, क्लेम्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होगा और ड्राइंग्स होगा। पूरा जो टाइम जो लिमिट होती है पेज की वो 30 पेजेस और 10 क्लेम्स होते हैं। अगर इससे बियॉन्ड जाते हैं, इंक्रीज होता है, तो हर पेज चार्जेबल होता है, और क्लेम्स को भी 10 क्लेम्स से ज्यादा आप जाते हैं वो भी चार्जेबल होता है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 11A के अंडर आपका पेटेंट पब्लिश होता है। फॉर्म 9 करते हैं तो अर्ली पब्लिकेशन के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज 18 महीने लगते हैं पेटेंट को पब्लिश होने में। ये एग्जांपल है, जब भी कोई पेटेंट पब्लिश होता है तो आपकी टाइटल आ जाएगा वहां पे, जैसे इसमें एक इन्वेंशन मैंने एक केस स्टडी डाली है, रिएजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन एंड यूज देयरऑफ। रिएजेंट हमने क्लेम किया, मैंने एक रिएजेंट बनाया है, ठीक है। बेनिटेक बायोफार्मा लिमिटेड कंपनी का है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है। पीसीटी एप्लीकेशन है और नीचे उनका एब्स्ट्रैक्ट है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है जब पेटेंट एक पब्लिश होता है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, पब्लिकेशन डेट, एवरी इन्फॉर्मेशन आर देयर। Next, request for examination. No application shall be examined unless and until you file the Form 18. जब तक आप Form 18 फाइल नहीं करेंगे तो पेटेंट ऑफिस आपके एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। So it is mandatory that you, if you want to go for every step in the patent process, you have to keep a check on that कि आपका पेटेंट किस स्टेज पे पहुंचा है। जैसी पब्लिकेशन हो जाए आप तुरंत अपनी Form 18 की रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं, जिसकी जो फीस है वो 4000 नॉर्मल एंटिटी के लिए है और यूनिवर्सिटी की तरफ से जाते हैं तो 20000 है। एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन मैंने बताया कि अगर एक्सपेडाइट के लिए जाते हैं तो एप्लीकेंट अगर स्टार्टअप है, वुमेन कैटेगरी में है, नॉर्मल एप्लीकेशन को भी आप एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पेइंग द एक्स्ट्रा मनी। नेक्स्ट, पेटेंट ऑपोजिशन में 2 चीजें मैंने आपको बताई, प्री और पोस्ट। प्री में कोई टाइम पीरियड नहीं होता, पोस्ट में आपको 1 साल का टाइम मिलता है आफ्टर द ग्रांट। 1 साल के अंदर अंदर आप किसी भी पार्टी को, किसी भी कंपनी को अपोज कर सकते हैं ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। एक केस स्टडी मैंने यहाँ पे ली है प्री ग्रांट ऑपोजिशन की, जिसमें एक एप्लीकेशन नंबर है कैलकाटा का। एप्लीकेंट थे ललित महाजन, ओके।
ललित ने एक डिवाइस पे पेटेंट फाइल किया है, डिवाइस फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू HIV एंड P24 एंटीजन ऑफ HIV इन ह्यूमन सीरम और प्लाज्मा। पेटेंट ऑफ इसी पेटेंट को अपोज किया एक क्वाल प्रो डायग्नोस्टिक कंपनी ने। ग्राउंड्स क्या थे ऑब्जेक्शन के? द इन्वेंशन नॉट बीइंग पेटेंटेबल अंडर सेक्शन 3I। ग्राउंड्स उन्होंने बोले कि जी सेक्शन 3I में ये इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो 3I में फॉल करिए, दूसरा उन्होंने बोला कि इन्वेंटिव स्टेप की लैक है, इन्वेंटिव स्टेप की कमी है, और इनसफिशिएंसी ऑफ डिस्क्लोजर। ओके, ये सारे उन्होंने ग्राउंड्स लगाए ऑपोजिशन पार्टी ने कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे मैं अपोज करता हूँ ललित महाजन जी का पेटेंट। कंक्लूजन में फाइनली कंट्रोलर ने क्या डिसाइड किया? कंट्रोलर ने अलाउ किया द क्लेम फॉर डायग्नोस्टिक किट ऑन द बेसिस दैट द एप्लीकेशन हैड क्लेम्स ऑन फिजिकल कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ द डिवाइस। The controller opined that the device resulted in improved efficacy in determination of HIV antibodies. The controller in this case clarified that when components of the device are not new, but they combine to produce a better result in more expenditure or and the present invention proceed to allow the application for grant. फिर further ये जो pre grant opposition था ये further grant हो गया on the basis of that कि हम जो claim कर रहे हैं वो 3I में fall नहीं कर रहा है, वो diagnostic kit है जो कि already जो कि improved है, जो पहले से जो kit available है उनसे better है, उनसे improved है, उनसे उसके जो results है वो बहुत better है और इसकी जो efficiency है वो भी बहुत सही अच्छी है। तो इस basis पे ये patent further grant हुआ। नेक्स्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स की। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन आता है कि आर जेनरिक ड्रग्स अलाउड फॉर पेटेंट? जेनरिक ड्रग्स पे हम पेटेंट ले सकते हैं या नहीं? तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा नहीं। न्यू ड्रग्स आर डेवलप्ड अंडर द पेटेंट प्रोटेक्शन, मोस्ट ड्रग्स आर प्रोटेक्शन फॉर 20 years after the FDA filing. So however it may take many years to research and get the brand name drug to the market. When the patent get closer to expiration, other drug companies apply to FDA for approval to start selling the generic version of the drug. जब एक पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, पेटेंट एक्सपायर हो गया, फिर आपको जो कंपनीज हैं फिर आपको बोलती है कि अब आप इसकी जेनरिक मेडिसिन बनाइए। जेनरिक मेडिसिन क्यों हम खरीदते हैं? क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली नहीं होती है। अगर हम ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो वो दे आर वेरी लेस कॉस्टली, बट जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगर एक पैरासीटामोल को मैं कंपेयर करती हूँ और एक कैलपॉल को कंपेयर करती हूँ, दोनों ही आपकी फीवर के लिए यूज होती है, पर पैरासीटामोल एक जेनरिक ड्रग है जो कि कम प्राइस की है और कैलपॉल वही एक ब्रांडेड ड्रग है। तो इसीलिए लोग क्या है कि जो बड़ा क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल में रहता है कि जेनरिक ड्रग को पेटेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो जेनरिक ड्रग्स को आप पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। वो फाइल ही जेनरिक ड्रग प्रोड्यूस ही तब होती है जब पेटेंट जो आपके एक्सपायर हो जाते हैं। Granted patents, these are the some granted patents from the patent office. जिसमें melasmine for the treatment of cancer, कोई method for treating renal cancer including renal cell carcinoma के लिए आपने पेटेंट ग्रांट हुआ है जो सिप्ला का पेटेंट है। नेक्स्ट आपका oral pharmaceutical dosage form of budesonide. The present invention related to novel oral sustained release pharmaceutical dosage form बनाई थी जो कि डिलीवरी of budesonide to lower gastrointestinal tract के लिए यूज करी थी Crohn disease के लिए। ओके ये भी एक का ग्रांटेड पेटेंट है जो कि सन फार्मा का पेटेंट है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेरोग्लिसर फार्मास्यूटिकल सॉल्ट, प्रिपरेशन के लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आप सॉल्ट को बनाने का मेथड, ठीक है, मेथड को आप करना चाहते हो तो पेटेंटेबल है। यहाँ पे मेथड फॉर क्योरिंग या मेथड फॉर ट्रीटिंग नहीं है, यहाँ पे मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द सॉल्ट है, दैट इज अलाउड फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस। ये कैडिला हेल्थ केयर का पेटेंट है जो कि that is related to improved process for the preparation of pyrrole derivatives having hypolipidemic and hypocholesteromic activities. Next, now after the grant of patent, very important term in related to pharma, that after the expiration of 3 years from the date of grant of patent, any person interested can obtain a compulsory license on the following grounds. अगर आपको लगता है कि आपने कोई पेटेंट आप लेके बैठे हैं बट आप उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल हो गए पेटेंट ग्रांट हुए, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी आप कंपल्सरी लाइसेंस के लिए पेटेंट ऑफिस में अप्लाई कर सकता है। उसके डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं। पहला ग्राउंड है कि जो भी जिस ड्रग पे पेटेंट आपने फाइल किया है वो आपकी पब्लिक की रिक्वायरमेंट को मेट नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अवेलेबल नहीं है पब्लिक में, आप पता चला फॉरेन में इसको बेच रहे हैं, इंडिया में यूज ही नहीं हो रहा है उसका काम, टेरिटरी में वर्क नहीं कर रही थी, और अगर टेरिटरी में वर्क भी कर रही है तो बहुत ही हाई प्राइस है जिसमें कि एक नॉर्मल पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंट ग्राउंड्स के बेसिस पे आप कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
टर्म एंड कंडीशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ऐसा नहीं कि आप पेटेंट ऑफिस में गए और आपने बोला मुझे ये बंदा काम नहीं कर रहा है, इसने पेटेंट लेके बैठा और आप ये पेटेंट मुझे दे दो। नो, देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स। कंट्रोलर देखता है कि आपने अगर आवाज उठाई है कंपल्सरी लाइसेंस के लिए तो व्हाट आर द ग्राउंड्स, वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, उसके बाद ये कंपल्सरी लाइसेंस किसी को ग्रांट होता है। जब भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होती हैं, जिसमें रॉयल्टी, रेमुनेशन, if any reserved to the patentee. Patented article should be worked to fullest extent by a person to whom the license is granted or not. Patented article should be made available to the public at reasonable affordable price. License granted is a non-exclusive license और नॉन असाइनेबल। जब भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट होते हैं तो हमेशा याद रखें वो नॉन असाइनेबल और नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही ग्रांट होते हैं, ठीक है। और जो टाइम पीरियड होता है वो भी फिक्स होता है, और जो रॉयल्टीज डिसाइड होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है। वो कंट्रोलर खुद डिसाइड करते हैं कि कितनी रॉयल्टीज आपको पेटेंटी को देनी है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हुआ था नेटको फॉर बियर कैंसर ड्रग। ओके, नेटको एंड बियर बोथ आर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। The first compulsory license granted to Natco Bayer obtained a patent for its drug in India in 2008, but the drug was way overpriced. Okay, so that was the reason why Natco go to the patent office and go and file a compulsory license for this Bayer anti-cancer drug. Then finally, Natco give the right to sell this product at a low price compared to the Bayer anti-cancer drug, and on the basis of that, they have to give 6% royalty to the Bayer. Okay, so this was this was the final decision for the Natco and the Bayer case. After granting of patent, we have a very important issue that is called patent infringement. What is patent infringement? If any person exercises the exclusive right of any patent holder without their permission within the country of the patent grant and during the patent term, a person is liable for infringement if his product or process is same as the patented inventions. तो कोई भी किसी भी पर्सन को सू कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसने मेरी बिना परमिशन के मेरी इन्वेंशन को यूज किया है और उसको बेच रहा है। ओके, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इन्फ्रिंजमेंट के लिए भी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप फाइल कर रहे हैं तो आपको उसके डैमेजेस या उसका पैसा आपको मिलेगा। कुछ एग्जम्पशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वेंशन गवर्नमेंट यूज कर रही है अपने लिए, ठीक है, तो वो आप इन्फ्रिंजमेंट के सूट के लिए नहीं फाइल कर सकते हैं। रिसर्च एग्जम्पशन है कि एनी पर्सन कैन यूज दिस इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ यूज कर रहे हैं आप, तो भी आप अलाउ नहीं करते हैं कि आप इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करें और ऐसी इन्वेंशंस और ड्रग्स के लिए। सप्लाई ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स टू हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, कुछ इमरजेंसी कंडीशन में अगर गवर्नमेंट को वो ड्रग जो है पेटेंटेड ड्रग को किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में सप्लाई करना हो तब भी आप इन्फ्रिंजमेंट सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। यूज ऑफ इन्वेंशन इन फॉरेन वेसल, अगर एक्सीडेंटली कोई फॉरेन वेसल इंडिया में आ गया है, ठीक है, और इंडिया में यूज हो रहा है, तो उसके लिए भी आप इन्फ्रिंजमेंट सूट नहीं फाइल कर सकते। ये कुछ एग्जम्पशंस है जहां पे आप इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल नहीं कर सकते हैं इन कुछ कंडीशंस में। सॉरी। नेक्स्ट, इन्फ्रिंजमेंट के लिए मैंने केस स्टडी लिया है साइमद लैब्स एंड वर्सेस ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल केस। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी वाज एलिजिबली इन्फ्रिंजिंग 2 ऑफ साइमद पेटेंट्स। ये आईएन इंडिया का पेटेंट्स है जो कि साइमद फाइल सूट अगेंस्ट ग्लेनमार्क इन दिल्ली हाई कोर्ट। The court ने क्या ऑब्जर्व किया that there was a prima facie case in favor of Symed and the protection to the patent process ought to be granted to Symed as damages will not be effective remedy. Thus, the court granted an adjourned injunctions retaining Glenmark from manufacturing, selling, offering for sale, advertising, or directly or indirectly dealing in the production of linezolid. Thus, infringement of Symed is registered. Patent was finally given to the मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने पेटेंट फाइल कर दिया, आपने ग्रांट भी हो गया पेटेंट, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कोई कॉम्पिटिटर को लगता है कि इन्होंने मेरी सिमिलर टेक्नोलॉजी, मेरी सिमिलर पेटेंट्स पे पेटेंट फाइल किया है, तो वो आपको सू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें एग्जांपल है नोवार्टिस वर्सेस सिप्ला केस। नोवार्टिस ने फाइल किया सूट अगेंस्ट इंडिया जेनरिक ड्रग मेकर सिप्ला फॉर मेकिंग और सेलिंग जेनरिक कॉपीज ऑफ नोवार्टिस ऑन रिस्क। In this case, temporary injunction were issued by Honorable Delhi High Court against Cipla to protect the patent rights of Novartis. This case is a classic illustration of patent jurisprudence in India to enforce the patent rights in fair manner and to prevent inappropriate application for exemption clauses. तो पेटेंट में जब आप इन्फ्रिंजमेंट सू करते हैं तो उसमें आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि आपने कितनी इन्फ्रिंजमेंट की है। आपने सपोज अगर 2014 से
कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और आपने केस फाइल किया, तो आपको 2014 से लेके अब तक का जितना भी डैमेजेस होगा कोर्ट आपको बोलेगी कि आपको पे करना है। तो इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है, इसके लिए कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि वो कितना डैमेजेस उसको पे करना है। परमानेंट इंजंक्शंस लगा देती है, डैमेजेस आपको पे करने पड़ते हैं, और रेमेडीज मतलब दे देती है कि आपको सारा अपना माल जितना भी प्रोडक्ट है जो भी मार्केट में है, जो अगर उसको लगता है इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल हो तो उसको बोलेगी कि आप स्टॉप करो, आपको पूरा लॉट अपना रिमूव करो, तो कितना डैमेजेस आपको पे करने। इससे बेटर है कि आप पहले जो पेटेंट फाइल करें तो उसको एक बार, अगर आपको लगता है कि किसी कंट्री में आप पेटेंट फाइल करें, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है हमारे पेटेंट के अंदर। जब हम पेटेंट सर्च करते हैं, इससे नोवेल्टी सर्च के अलावा आपके पास फ्रीडम टू ऑपरेट है, इनवैलिडिटी सर्चेस है, डिफरेंट सर्चेस हम लोग कंडक्ट करते हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए, जिसमें हम ये उनको आइडिया देते हैं कि आप जो भी ड्रग पे पेटेंट फाइल करना चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी मार्केट कितनी है, कितने लोगों ने उस पे सेम ड्रग पे काम किया है, या आपको लगता है कि अगर सपोज आप कोई पेटेंट को चाइना में या यूएस में फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, तो बेटर है कि पहले आप उसकी एफटीओ करा लें, आपको ये पता चल जाए कि उसकी जो यूज है उसका उस कंट्री में कितना फ्रीडम है उसको फाइल करने का। ओके, तो फार्मा के केस में वी डू लॉट ऑफ फ्रीडम टू ऑपरेट, वी डू लॉट ऑफ इनवैलिडिटी सर्चेस, okay, revocation and these kind of searches are very important in when we talking about the pharma patents. Another example I have taken for the trademark infringement, VGM Group PLC versus SRK Pharmaceutical. The bench of justice comprises in 2004 restrained SRK Pharmaceutical from using deceptively similar mark. Similar mark के लिए ये फाइल हुआ था. Applet was using the mark amoxicillin in India since 1990. The mark was registered in India in 1972 in class 5. 1972 में already भी registered हो चुका था. Okay. In respect of pharmaceutical goods, the respondents started using the mark Limoxil in India in 1985. Amoxil और Limoxil जब देखा कि similar mark है और उन्होंने already वो 1972 में register कर रखा था, तो इंटेलेक्चुअल आईपीएबी में ये जब केस गया तो फोनेटिकली डिसेबल्ड सिमिलर की वजह से जो है एप्लेट ने एक्शन लिया और उसको जो मार्क था वो उनका प्रोहिबिटेड किया कि आप इस मार्क को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अभी बड़ा नया रिसेंट केस आया जब कोरोना की सिचुएशन में सबने हैंड सैनिटाइजर यूज करना शुरू किया, तो एक डेविटॉल करके कंपनी आई, डेटॉल की डुप्लीकेट, जिसमें उन्होंने डेविटॉल कंपनी रजिस्टर की, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन भी देखो आप बिल्कुल सिमिलर था, ठीक है, और उन्होंने एक हैंड सैनिटाइजर निकाला और उसको उन्होंने तो जब डेटॉल को पता चला कि ये तो मेरे नाम को यूज कर रहे हैं, इन्होंने सेम उसका जो रिजेंबल है कलर कॉम्बिनेशन भी सेम किया है, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपको 1 लाख रुपए का डैमेजेस देने होंगे और दूसरा जो भी जितने भी प्रोडक्ट है मार्केट में वो सब आपको उठाने होंगे। सो ये फाइनली डिसीजन हुआ, ठीक है। जब आप इन्फ्रिंज करते हो तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो कोई आपको देख नहीं रहा है, तो अगर बड़ी कंपनीज है उसको लगता है कि नहीं हमारा जो ब्रांड है वो खराब हो रहा है, तो आपको वो कोर्ट लेके जाते हैं, जिसके बेसिस पे कोर्ट ही डिसाइड करता है कि उसको कितना उसको पेनल्टी पे करनी है। नेक्स्ट आपका रोचे वर्सेस बोलार। ड्यूरिंग 1960 रोचे डेवलप्ड फ्लूजापाम, a class of substitute benzodiazepines. They subsequently obtained a patent for its under brand name called Dalmane on 17/1/1967. Bolar Pharmaceutical, a small US brand generic company, decided to develop a generic version of Florazepam after the expiry of Roche patent in 1984. Roche filed a case against Bolar in 1983 for making, using, offering for sale or importing a patented invention. Bolar used Florazepam for developing this generic drug. Roche won the case and the government gave an order to confiscate the drug developed by Bolar. So this is again infringement case. Okay. So after the whole story of the role of intellectual property, the role of IPR in pharma industry is very wide. Okay, so we have a different terminologies when we are talking about pharma patents, and like compulsory license, or where we have a different case studies for patent oppositions, we have a different case studies for patent infringement, and there is a different process when we file a patent under the pharma industries. When we are filing a patent under the pharma industry, under the pharma category, always bear in mind that it should not fall in section 3D or 3I. Okay, for that better you can provide the better scientific results when we are going to file a patent for these kind of pharma products. Okay, and so it should be keep in mind it should not related to medical method for treatment, more it's related to medical devices.
so that it will not be hampered during the FAR response. So thank you, and for giving me this opportunity for having a webinar on intellectual property rights. And these are the valuable important links where you can fetch the information related to ipindia.nic.in. Okay, and espacenet.com is a very good portal where you can do a novelty search. If you have an idea, if you have something in your mind, you, on the thing where you're doing some research, तो आप Google patent और eSpaceNet पर जाके कोई भी कीवर्ड आप डालिए, you get the list of patents there and you can find out कि आपकी इन्वेंशन कितनी नॉवल है. आप एक लिस्ट निकाल सकते हैं, खुद से अपना थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं. बेटर यू कैन डू गिव दिस वर्क टू एनी पेटेंट अटॉर्नी. अगर आपको लगता है कि कुछ सिमिलर पेटेंट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो आप उनको पहले ही मॉडिफाई करें, देन यू गिव टू द अटॉर्नी और एनी लॉ फर्म फॉर फाइलिंग अ पेटेंट. So thank you.